देखो इस समय दो मुद्दे हैं। एक तो एमएसपी के ऊपर है, डल्लेवाल जी। साहब एमएसपी के लिए आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। दूसरा है जो ड्राफ्ट केंद्र सरकार ने भेजा है उसकी मांग है। पंजाब और हरियाणा में जो मंडीकरण है वो हम्म। धान की फसल किसने लूटी? कि ये जो मंडीकरण है, मंडीकरण किसान के लिए कसाईयत है। आज जो मंडी में किसान की लूट हो रही है, कोई लूटने हम्म। वाला लुटेरा नहीं आ, लूटने हम्म। वाला है मंडी के दलाल। अब पानी की बोतल बनाने वाला एयरपोर्ट में भी बेच सकता है, पार्लियामेंट में बेच सकता है, बाजार में बेच सकता है। तो मैं अपनी फसल का अधिकारी हूं, मैं अपनी फसल को चाहे दिल्ली में बेचूं, चाहे कंपनी को बेचूं, चाहे आड़ती को बेचूं, अगर प्राइवेट प्लेयर आएगा खरीद के लिए तो रेट बढ़ेंगे या घटेंगे? ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਹੋਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮਿਲੇ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ आप ਵਿਰੋਧ ये, ਕਰਕੇ? लेकिन हम्म। उसके साथ साथ किसान को बाजार मिलना चाहिए, किसान को निर्यात आयात में पाबंदी हटनी चाहिए, सरकारी तंत्र को अलग करना चाहिए। अगर मैं किसान और किसी कंपनी से एग्रीमेंट करके ये कहता हूँ मेरी फसल इस भाव में बिकेगी, उसमें आपको क्या तकलीफ है? इनके पास ठेकेदारी है क्या? किसान की नीति निर्धारण के लिए क्या संयुक्त किसान मोर्चा ठेकेदार है? अभिमन्यु को भी गया था, राज्यपाल हम्म। साहब को भी गया था, राकेश टिकैत चुड़नी को भी, आप आके अपने सुझाव दो कि क्या करना चाहिए। हम्म। उसमें खुला है, लेकिन अगर ये नहीं आएंगे तो क्या करेंगे? ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਦਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੀਤ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋ ਮਸਲੇ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਰਗੀ ਝਲਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਕੇਯੂ ਮਾਨ ਤੋਂ ਗੁਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤਮਾਮ ਕਿਸਾਨੀ ਆਗੂਆਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। सत श्री अकाल जी। ਗੁਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ, ਦੇਖੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਚ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ? नहीं जी, हमारी दल्लेवाल साहब से जो हमारे बुजुर्ग किसान नेता हैं और हम्म। उनको बचाना बहुत जरूरी है। और जिस हम्म। तरह की हालात में आज वो हैं, उसके लिए चाहे केंद्र सरकार को भी पहल करनी चाहिए और किसान मोर्चे के नेता है उनको भी पहल करनी चाहिए, क्योंकि हम्म। जीवन सबसे जरूरी है और इतने समझदार किसान नेता का होना हमारे बीच में बहुत जरूरी है। उनका जो आज जो उनकी स्थिति है बहुत खतरनाक स्थिति पे है, इसलिए हम्म। उनको बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए। ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਗੁਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਸਕੇਐਮ ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਹੋਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਐਸਕੇਐਮ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸਕੇਐਮ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਸੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲ नहीं ਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ? नहीं, देखो इस समय दो मुद्दे हैं। एक तो एमएसपी के ऊपर है, जी। दल्लेवाल साहब एमएसपी के लिए आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। दूसरा है जो ड्राफ्ट केंद्र सरकार ने भेजा है उसकी मांग है। हम्म। अब आपको ये जो तीन कृषि कानून की बात कह रहे हैं और जिस तरह से आप ये बताओ कि क्या कृषि सुधार होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? अब यहाँ ये चर्चा है जो कृषि के अंदर, आप एक ही बात बताओ, मंडी डांड जो पंजाब और हरियाणा में जो मंडीकरण है,
वो धान की फसल किसने लूटी? जो किसान ने अपनी फसल बेची, एमएसपी पे सरकार ने पूरी की पूरी जो दाम है वो किसानों के खाते में डाल दिए गए, और उस पे जो कटौती लगी वो किसानों से लेके सेलर मालिकों को दे दी गई। वो बहुत बड़ा जो लूट का केंद्र था वो सरकार ने तो एमएसपी पे पैसे दे दिए। और जो आड़ती है, आड़ती सिस्टम है, मैं आपको बताऊं, हमारे किसान नेता जिन्होंने भारत रत्न भी मिला हुआ है, जो हमारे थे चौधरी चरण सिंह जी, उनकी एक किताब है इंडियन इकोनॉमी। उसमें उन्होंने कहा था कि ये जो मंडीकरण है, मंडीकरण किसान के लिए कसाईयत है। आज जो मंडी में किसान की लूट हो रही है, कोई लूटने वाला लुटेरा नहीं आ, लुटेरा वाला है मंडी के दलाल, मंडी की सिस्टम। अब आप पर अपनी फसल को अपनी ਪਰ फसल को ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਇਹ लेके, ਗੱਲ ਪਰ हाँ ਗੁਨੀ जी, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆੜਤੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 9 मास ਦਾ रिश्ता है, यानी कि नाखून मास का रिश्ता है, तो उसके बिना तो सिस्टम चल नहीं सकता। नहीं आप ये बताओ तो ये लूट किसने की? ये लूट आड़ती और सेलर मालिकों ने किसानों की फसलों को लूटा। वो किसी अडानी तो लूटने के लिए आया नहीं, कोई बड़ी बड़ी कारपेट घराने तो आए नहीं। उसके अंदर कौन थे लूटने वाले? मंडी में लूट कौन करता है? क्योंकि मैं अपनी फसल पंजाब में नहीं बेच सकता, यूपी में नहीं बेच सकता। जो मंडीकरण है, मंडी के बिना आप अपनी फसल नहीं बेच सकते। और मंडी में लूट कौन कर रहा? मंडी के दलाल कर रहे। आप जो सिस्टम है, सरकार ने कह रखा कि आप मंडी के भी अलावा फसल नहीं बेच सकते। और फसल लूटने वाला कौन है? लूटने वाला आड़ती, लूटने वाला सेलर मालिक, लूटने वाला दलाल। उनके खिलाफ तो आप बोल नहीं रहे। आप उनके लिए तो कह रहे कि अच्छा, अगर मान लो आड़ती इतने बढ़िया जब फसल लेके मैं मंडी के यहाँ डालता हूँ, उसकी जिम्मेदारी तो आड़ती की है। तो वो सेलर मालिक से मिलके और खरीद एजेंसी के प्रशासन से मिलके किसान की फसल लूटी जा रही है। इसमें ਤੁਸੀਂ कौन ਕਹਿ है? ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ? बिल्कुल नहीं, कृषि सुधार केंद्र है, जो कृषि में सुधार होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। आप एक बात बताओ, मेरी भैंस ਨਹੀਂ है, ਸੁਧਾਰ, ਪਰ ਗੁਣੀ मैं ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣੇ मैं ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ आपको ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੈਂਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਲੁਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੈਕਐਂਡ ਤੋਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ। नहीं साहब, ये भी अफवाह है। जब केंद्र सरकार ने वो ड्राफ्ट पूरे प्रदेशों में भेज दिया कि ये ड्राफ्ट है, इस पे आप चर्चा करो। आप एक बात बताओ, मैंने अपनी भैंस बेचनी, मैं पटवारी के अलावा नहीं कहीं बेच सकता, पटवारी की सहमति चाहिए। भाई भले आदमी, अगर मेरी फसल है, मैं अपनी फसल मंडी में बेचूं या किसी कंपनी को बेचूं, या आप पानी की बोतल है, अब पानी की बोतल बनाने वाला एयरपोर्ट में भी बेच सकता है, पार्लियामेंट में बेच सकता है, बाजार में बेच सकता। तो मैं अपनी फसल का अधिकारी हूं। मैं अपनी फसल को चाहे दिल्ली में बेचूं, चाहे कंपनी को बेचूं, चाहे आड़ती को बेचूं। ये जो कानून है मंडी का कानून, वो कह रहा है कि मेरी मंडी के ना। अब एक बात बताओ, मैंने आड़ती से 2 लाख रुपए ले लिए, मैं अपनी आड़त के अलावा कहीं फसल नहीं बेच सकता। इसका मतलब पर वो ਗੁਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ मंजूर है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਐਡਾ ਸક્ષਮ ਹੈਗਾ ਵੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਖੁਦ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲੂਗਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਲੂਗਾ? क्यों नहीं है? क्यों नहीं बेच सकता? जब मैं बताऊं, अगर हमारे सऊदी अरब में बासमती का सौदे होगी तो व्यापारी हमारे पास आएगा खरीदने। सरकार ने यही भेजा कि ਫਿਰ अगर ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ सारे ਜੇ नहीं, ਹੁਣ ਕੁਝ कौन ਦਿਨ करे, ਪਹਿਲਾਂ कौन नहीं। आप बताओ, हरियाणा की सरकार ने कह दिया कि हम 24 एमएसपी की गारंटी देंगे। हरियाणा में क्या है? हरियाणा में भी अगर जो लोग विरोध कर रहे हैं वो कर रहे हैं में आप एक मुद्दा है कि मंडी किसानों को खरीदने की आजादी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, या वो ਨਹੀਂ मंडी में ਉਹ बेचेगा, ਠੀਕ ਹੈ, क्यों बेचेगा? ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਜੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ नहीं साहब, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਜਦੋਂ आऊगा ਖਰੀਦਣ ਦੇ तो ਲਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ साहब कंपटीशन करेगा। सुनो, अब गेहूं का रेट क्या है? 35 से 4,000 रुपए है।
अगर प्राइवेट प्लेयर आएगा खरीद के लिए तो रेट बढ़ेंगे या घटेंगे? उसमें बट उसमें एक और बात है, बाजार को केंद्र सरकार ने गेहूं पे और चावल पे पाबंदी लगा दी, वो लगानी नहीं चाहिए। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में भी ये कहा गया कि ये किसानों के बाजार में उसकी खरीद पे निर्यात और आयात में पाबंदी नहीं होनी चाहिए। इस पाबंदी को हटा दे तो गेहूं क्या कह रहा है अंतरराष्ट्रीय मार्केट पे। ਤੁਸੀਂ जब ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਹੋਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮਿਲੇ? सुनो, किसान को गारंटी मिले उससे कोई मुक्ति। अब आप बताओ, हरियाणा पंजाब में तो लगभग 80-90% एमएसपी पे खरीदी जा रही है, वो स्वर्ग में चले गए किसान। हम्म, एमएसपी हम्म, मौजूद होने के बावजूद भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं, कर्ज में मर रहे हैं। मैं उसकी बजाय किसान को बाजार मिलना चाहिए, किसान को लागत हम्म। के आधार पर लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, जो ਪਰ सीएसीपी ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਲਈ ਲੀਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਚ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ ਦਾ ਕੁਝ ਏਰੀਆ ਉਹ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ आप ਵਿਰੋਧ ये ਕਰਕੇ? आप ये बताओ, अब शेयर कितना है बीडीएस में, पंजाब कितना हिस्सा है, आप बताओ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ नहीं ਨਹੀਂ नहीं ਕੋਈ साहब, बात ये है कि किसान को बाजार मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, किसान को मंडी से मुक्ति मिलनी चाहिए या ना मिलनी चाहिए। मैं ये कह रहा एमएसपी होनी चाहिए, एमएसपी का हम्म, ये होना चाहिए कि भाई इससे कम नहीं बिकेगी, लेकिन हम्म, उसके साथ साथ किसान को बाजार मिलना चाहिए, किसान को हम्म। निर्यात आयात में पाबंदी हटनी चाहिए, सरकारी तंत्र को अलग करना चाहिए। आपको ਨਹੀਂ ਫਿਰ पिठ दिलाने। ਡੱਲੇਵਾਲ ਮੇਰਾ ਗੁਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਗੂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ तमाम ਫੈਕਟਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਫੈਕਟਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਡੱਲੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 111 ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਅਮਰਨ ਅਨਸ਼ਨ ਤੇ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ नहीं ਫਾਇਦਾ नहीं ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? नहीं नहीं साहब, उनका मायने है, जो कुर्बानी दे रहे हैं उसको मैं भी सलाम करता हूं, लेकिन हम्म, सवाल ये है कि आप लड़ाई किस लिए लड़ रहे हैं। वो हम्म, एमएसपी की लड़ाई लड़ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन एमएसपी के साथ साथ उन्हें बाजार की भी लड़ाई लड़नी चाहिए। जो सरकारी पाबंद है, किसान को निर्यात आयात पे भी पाबंदी हटनी चाहिए। किसान को अब किसान को अगर बाजार नहीं मिलोगे, बाजार को किसने रोका? सरकारी तंत्र ने रोका, केंद्रीय सरकार ने रोका। हम कह रहे हैं हम्म, कि किसान को लागत के आधार पर, अब मैं उसका मेंबर हूं एमएसपी का, सीएसीपी हम्म, ये कह रहा है कि उसमें सीएसीपी के तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है कि उपभोक्ता के हित में महंगाई देखते हुए एमएसपी कीमत तय करेगी। क्यों करेगी? अगर किसान का हम्म, लागत खर्च एक दान की 1 एकड़ पे अगर वो 2600-2700 रुपए पर, तो उसको उसके लिए नहीं है उन्होंने। अब बताओ, किसान उपभोक्ता के लिए महंगाई अगर हम्म, होगी तो आप वहां से दूध भी ले आओगे, वहां से चावल भी हम्म। ले आओगे, वहां से ਪਰ दाल भी ले आओगे। ਫਿਰ मार्केट ਪੇਚ घेरने ਫਸੇ के ਕਿੱਥੇ लिए तो ਹੋਇਆ ਹੈ? सरकार की। ਫਿਰ हाँ ਕੇਂਦਰ जी, ਪੰਜਾਬ ਦੇ किसानों ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਇੰਨਾ ਜੇ ਫਾਇਦਾ सरकार ਤੁਸੀਂ नहीं देख रहे हो। सुनो, सरकार इसीलिए तो सरकार कह रही है कि ये जो हम्म, ड्राफ्ट आया है उसमें उन्होंने कहा कि मार्केट के अलावा बाजार भी खुलेगा। उसमें आप प्राइवेट प्लेयर के कह रहे, अगर किसी को अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, हम्म, क्यों गन्ना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, और जो एमएसपी का हम्म, है वो भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। तो अगर हम्म, आपने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का विरोध होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? अगर मैं किसान और कृषि कंपनी से एग्रीमेंट करके ये कहता हूं मेरी फसल इस भाव में बिकेगी, उसमें आपको क्या तकलीफ है? और इसलिए हम्म। एक माहौल बना दिया गया कि कॉर्पोरेट गिराने, तो ये आपने तो पंजाब में इतने बड़े बड़े हाईवे भी रोक दिए।
आप सरकार ने, हम्म, लेकिन देश और सड़कों का जाल फैल गया। इस तरह की जो भावनाएं हैं, जो हम्म। बाजार है, किसानों को भी लिबर्टी मिलनी चाहिए। अब किसी को कारखाने से पैदा की ਤੁਸੀਂ हुई उसकी ਤੁਸੀਂ तो कीमत करने की आजादी है, ਗੁਣੀ किसान को ਪ੍ਰਕਾਸ਼ आजादी नहीं। ਗੁਣੀ आपको पता ਪ੍ਰਕਾਸ਼ है ਜੀ दूध ਤੁਸੀਂ की। ਤੁਸੀਂ हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ। हाँ जी। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਆਖਰਕਾਰ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਜਤਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਫਿਰ क्यों? ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ नहीं ਹੈਗੇ ਉਹ? नहीं, आप ये बताओ, जब ये कमेटी बनाई गई थी उसमें ये हम्म, साफ लिखा गया था भी अलग अलग संगठनों के प्रतिनिधियों को बुलाया जाएगा। 5 हम हम्म, किसान बुला लिए और 5 के हम्म, साथ 3 संयुक्त मोर्चा के बुला लिए। भाई क्या हम्म, इनके पास ठेकेदारी है क्या? किसान की नीति निर्धारण के लिए क्या संयुक्त किसान मोर्चा ठेकेदार है? हम भी तो ठेकेदार हैं। महाराष्ट्र के भी ठेकेदार है, मध्य प्रदेश के भी ठेकेदार है। इन्होंने तीनों ने बायकाट कर दिया। आप वहां हाँ, टेबल पे बात करो ना। सुनो, अब मैं बात करे आपसे, वो आके हम्म, इस टेबल पे बैठ के बात करते, अपने मुद्दों की बात करते। अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट की कमेटी आई, आप उस पे भी नहीं जाओगे। आप हम्म। मंत्री आएंगे, उससे भी नहीं ਉਹ बात ਕਹਿੰਦੇ करोगे। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ डायलॉग ਵਿਸ਼ਵਾਸ से ਨਹੀਂ, तो बात चलेगी। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ नहीं ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ विश्वास ਨਿਕਲ करता, ਹਲੇ। नहीं समझो, इसका कोई बात है कि आप विश्वास नहीं करेंगे तो जो हम्म, आप लिखोगे वही मान्या जाएगा। आप डंडे से करना चाहो क्या? डायलॉग से हम्म। बात होगी, लोकतंत्र में बात होती है बातचीत के लिए। आप बट डंडा गुनी करो कि ये हमारा सत्य है, वही मान्या जाएगा। क्यों मान्या जाएगा? ਬਟ ਗੁਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਮੈਂਬਰ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਟੈਗ ਇਸ नहीं ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ साहब, ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ सुनो ਤੁਸੀਂ? सुनो साहब, मैं कंफर्म कर रहा हूँ। मैं हूँ भारतीय किसान यूनियन मान का गुट हूँ। जी जी जी। एक है किसान पंचायत का कृष्ण चौधरी, वो भी अलग संगठन है। एक जी। किसान संघ है, वो भी इंडिपेंडेंट है। एक शेतकारी संगठन का, वो भी अलग है। एक किसान के, हम्म, सारे अलग अलग संगठनों के चुने गए थे, उनमें कोई सरकार प्रतिनिधि नहीं है। और 3 हम्म, इनके मंगाए बुलाए गए, तो आप बातचीत के लिए क्यों नहीं आए? अब सुनो, अब ये बार तो- बार कह रहे कि केंद्र सरकार बात करे, प्रधानमंत्री बात करे। तो अगर जी। वो कमेटी थी तो उससे भी बात कर लेनी चाहिए थी। हम्म। डायलॉग जो है, अगर पर वो लोग मान कौन ले है? नहीं मान। ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੋ ਗੁਣੀ हाँ जी। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੱਸਿਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈ ਅਪਸ ਹੋਣੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ हाँ ਜਿਵੇਂ जी। ਝੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਝੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਲੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ हाँ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ हम्म, ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਐਂਟਰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ हम्म। ਇਹ ਜਿਹੜੇ, ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਊਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਬੈਠ ਰਹੀ ਹੈਗੀ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ नहीं ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? साहब, मैं आपसे बात करी, आपने मेरे को कॉल किया बात करने के लिए। उससे पहले जी। अगर मैं शर्तें लगा दूं, भाई आपको हम्म, इस मुद्दे पे बात करनी चाहिए, तब बात क्या हम्म, चाहिए? जब ये इनको बुलाया गया था, ये हम्म। कहते कि इस आंदोलन के ठेकेदार हम हैं, नीति निर्धारण हम करेंगे, दूसरे किसी किसान संगठन को नहीं बुलाना चाहिए। यही था इनका विरोध। तो अगर ਇਹ हम ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੋਈਆਂ ਨੇ, नहीं नहीं ਐਗਜ਼ੈक्ਟਲੀ हुआ, ਹੋਈਆਂ ने? नहीं, इन्होंने, इन नेताओं ने कहा, हम्म, जो संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं का ये बयान है, उन्होंने कहा कि हम ही बात करेंगे, दूसरे संगठनों को क्यों बुलाएंगे? हम भी ਨਹੀਂ बात जो ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਲਵੀਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿ हाँ ਟੈਕਨੀਕਲ जी। ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ हाँ जी। ਫੈਕਟਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਹੈਗੀ? ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ? ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨ 30 ਤੋਂ 35 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ने। नहीं, ये असल में संयुक्त किसान मोर्चा ने एक फैसला ले लिया था कि सिर्फ हमारे अलावा कोई इस कमेटी में नहीं होगा। इसके हम्म, कारण इन्होंने इसका बायकाट कर दिया। अब मैं डल्लेवाल साहब से ना राज्यवाल साहब से एक बात कहूं, जो डंकल का विरोध कराया था, तो उसके हम्म, अगुवानी तो राज्यवाल साहब थे। हम्म, जो कृषि जो सुधार हुए थे, उसमें तो राज्यपाल भूपेंद्र सिंह मान जी के साथ थे। हम्म, अब इन्होंने अपनी, अब ये जो कह रहे कि असली मसला ये है कि एमएसपी की तो बाद जो ड्राफ्ट है, वो किसी भी कृषि सुधार के लिए है, मंडीकरण का सुधार हो, बाजार हम्म, मिले, मंडी मिले, उन ड्राफ्ट पे आप चर्चा कर लो।
अब ये कह रहे हैं कि पहले, अब ये तो अब भी कहने को WTO का हटाओ। अब हाँ। कहाँ WTO है, कहाँ आपका मुद्दा है, कहाँ है आपका प्रोजेक्ट? यो पूरे देश में अब जिस समय PV नरसिम्हा राव ने और कांग्रेस ने WTO कराया था, उसके लिए तो बाजार खुला था। हालांकि WTO पूरी शर्तें नहीं लागू कर रहा, उसमें भी हम्म। हेरा फेरी। अब सवाल ये है कि आप अपनी भैंस बेचने के लिए सिर्फ पटवारी की जिम्मेवारी लगाओगे। मंडी क्या है? मंडी के हम्म। अलावा किसान कहीं अपनी फसल नहीं बेच सकता। वो ही तो ड्राफ्ट है भी, ਤੇ ਫਿਰ किसान ਇਹ को। ਨਿਪਟੇਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਝਗੜਾ ਨਿਬੜੇਗਾ ਕਿਵੇਂ ਗੁਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ? नहीं ਕਿਉਂਕਿ सुनो, ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ देखो ਕਨੀਓ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਿਪਟੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? देखो इसका हल तो ये है, अब ये MSP की बात कह रहे, तो हम्म। MSP की बात है, उस पे हमारी भी कमेटी, जो मेरी जिस कमेटी का मैं मेंबर हूं, उसमें 3 हम्म। मुद्दे हैं। एक है कृषि विविधीकरण, हम्म। कोस्ट ड्राइवर्सन। दूसरा है नेचुरल फार्मिंग। एक है हम्म। MSP। तीनों पे हम्म। हमने अपनी रिपोर्ट देनी, और हम्म। उसके अंदर हमारी लगभग 2.5 साल से हम चर्चा कर रहे हैं। हमने हम्म। इनको भी निमंत्रण किया, मैंने डिबेट में भी कहा था, अभिमन्यु को भी कहा था, राज्यपाल हम्म। साहब को भी कहा था, राकेश टिकैत को, चुड़नी को भी, आप आके अपने सुझाव दो कि क्या करना चाहिए। हम्म। उसमें खुला है, लेकिन अगर ये नहीं आएंगे तो क्या करेंगे? इसका मतलब ये है, ये बातचीत नहीं करना चाहते। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ अब ਵੀ ये ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਇਨਵਾਈਟ करता ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ हमेशा। साहब एक बात बताओ, जब ये धरना इन्होंने दिया था, 3 मंत्री चंडीगढ़ में गए थे या नहीं गए थे? हाँ बिल्कुल गए सुप्रीम सी। कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट में कमेटी बनाई गई थे, भूपेंद्र सिंह मान जी मेंबर थे, उन्होंने बाहर निकल गए थे, उसके पास नहीं है गए। अब जब बात ये है, बातचीत से अगर ये निपटारा नहीं, अब डल्लेवाल साहब स्पष्ट कह रहे, पंडेर साहब भी कह रहे भी हमारे से बातचीत करो, तो हम्म। बातचीत से समाप्त, केंद्र सरकार को भी उनसे बातचीत करनी चाहिए। मान ले हम्म। बिना बातचीत के तो देखो कोई मसले का हल नहीं होगा। मान लो आप बातचीत करें, उसका कोई निष्कर्ष तो निकलेगा। तो केंद्र हम्म। सरकार को भी डल्लेवाल साहब की उसकी कीमत है, उनसे बातचीत करनी चाहिए। उसका मैं भी पक्षधर हूं, हम भी पक्षधर हम्म। है। खुद भूपेंद्र सिंह मान जी ने लेटर लिखा, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने हम्म। प्रधानमंत्री जी को लिखा कि डल्लेवाल साहब से बात करो, उनका जीवन बचाना चाहिए। हम्म। तो कहने का मतलब ये है, बिना बातचीत के, अब ये आज उनकी मीटिंग है, आज हम्म। पातड़ा में। अब उस हाँ। पातड़ा में जिस तरह का वो माहौल है, तो वो देखो, आप ये कह रहे हैं कि गैर राजनीतिक मोर्चा एक संयुक्त किसान मोर्चा है। अब हम्म। उनके जो कंट्रोवर्सी है, उस सारे को हम्म। छोड़कर किसान मुद्दे पे बात करो, जिससे हम्म। किसान को मुक्ति मिले। हम्म। मान ले सिर्फ आना से उसमें किसानों को, अब किसान क्या क्यों आत्महत्या कर रहा है किसान? क्योंकि उसको दाम नहीं मिल रहा। MSP जो हम्म। है, वो किसानों को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा। अब हम्म। स्वामीनाथन ये कह रहे, स्वामीनाथन ने तो ये कहा, जहां सरप्लस चीज है उस पर MSP हम्म। नहीं तय होनी चाहिए। अब पूछो स्वामीनाथन आयोग ने कहा कि नहीं कहा? तो हम्म। मेरा ये कहना है, ये सारी बात जो भी ये आंदोलन है, इसमें जी। बातचीत के अलावा कोई रास्ता नहीं है। बातचीत करनी चाहिए और बातचीत हम्म। का समाधान होना चाहिए। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦਾ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੀ ਫਿਕਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ नहीं। ਚਿੰਤਾ हाँ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। हाँ ਤੇ जी। ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗਏ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਊਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਗੁਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਰਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੰਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੈਠੋਗੇ ਤਾਂ MSP ਕਮੇਟੀ ਜਦੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਈਓ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਡੈਡਲੌਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਿੰਟ ਸਕਿੰਟ ਬੀਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬੜੀ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਨਾਸਾਜ਼ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹੂਗਾ।
ਤੇ ਗੁਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਹੁਣੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਰੱਖਣ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਊਗੀ। ਬਾਕੀ ਆਪਦੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਰਾਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਿਓ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਡੈਡਲੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰਕਾਰ ਵਿਲਨ ਕੌਣ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ।